Complete land of this Ram temple complex is around 70 acre. Not even a single small piece of the iron or steel has been used. एक आर्टिफिशियल रॉक क्रिएट किया गया है. 2100 kg का एक सिंगल बेल है और इसका जो साउंड होगा वो 15 किलोमीटर के दायरे तक सुना जा सकता है. 3000 साल तक भी कुछ नहीं होगा इस टेम्पल का. वी विल डिस्कस इन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द कल्चर. We will utilize this time in discussing certain important aspects of architectural, cultural, and engineering aspects of the temple. What is technology used in the design of the temple? Why people are saying that this will be 2500 years strong and nothing will happen? What is there? ऐसा क्या है इसमें कि 3000 साल तक भी कुछ नहीं होगा इस टेम्पल का? So this 30 to 35 minutes discussion will help you to understand these topics. We are not discussing in religion front, but we will discuss in architecture, engineering, science and technology, and certain part of the culture. Complete land of this Ram temple complex is around 70 acre. This building, which we discussing Ram temple, the foundation is very unique. Foundation is designed to withstand earthquake, any kind of the natural disasters, and moreover it should be very strong to sustain life of around 2 to 3000 years. हम जो भी बिल्डिंगें बनाते हैं, those buildings are 50 years, 100 years of life. And maybe certain important buildings like parliament or the bridges, maybe 200 years, 300 years of life. But when it comes to thousands of years, you have to choose foundation and material carefully. तो जो material यहाँ पर यूज होगा, that should be free from termite, free from corrosion. कोई भी corrosion ना हो. Corrosion जिसको जंग कहते हैं, that is the biggest problem. And iron or steel, if you use, corrosion is bound to occur. तो इस पूरी बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई स्टील नहीं यूज हुआ. Not even a single small piece of the iron or steel has been used. नहीं हुआ. दूसरा, ब्रिक तो जानते हैं ना, मिट्टी की बनी हुई ईंटें, उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड है. और ब्रिक इज समथिंग विच इज मेड फ्रॉम सॉइल एंड फाइनली इट गेट्स इनटू द सॉइल. मिट्टी से बनी और मिट्टी में मिल जाती है. तो इसमें ब्रिक का यूज नहीं हुआ. ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं यूज हुआ जिसकी लाइफ कम होती है. सो व्हाट दे हैव यूज्ड? स्टोन, कॉपर, and they have used teak wood for doors, but door is something which can be replaced even after hundreds of years. उसमें भी gold plated है या metal plating है, and it is a termite free. And they have used joint करने के लिए they have used the copper plates. I will talk about the strength of each thing and कैसे ये building 2500 years तक strong रहेगी, उसके क्या features है. Then what style has been used? Normally जो architectural style है इंडिया में, जो टेम्पल बनाने के काम आती है, there are two type of the architectures. One we call as Dravidian शैली, Dravidian style. जो साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं, सदर्न इंडिया, they are using Dravidian style. And जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स है, they are using the नागर शैली. So that is Nagar style. So in this Nagar शैली has been used. Or chief architect of the this temple design is Chandrakant Sompura. So CBS or Chandrakant B Sompura, he was the chief architect. और जो construction carried out हो रहा है, that is done by the Larsen and Toubro construction company है. Project management company is required to execute the project to finish on time. If there is a project management company, all the upcoming activities and events will be aligned in sequence. और या उनको अगर पैरेलल करना है तो दो एक्टिविटीज पैरेलल चला देंगे. कौन सा मटेरियल किस डेट को यूज होना है उसका पहले से ऑर्डर प्लेसमेंट करके, मैन्युफैक्चरिंग करा करके साइट में उसको प्रोक्योर करना, दैट वर्क इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी. 2019 में जब इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए फाउंडेशन को खोदा गया तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने आया कि सॉइल इज वेरी वीक. और सॉइल जो यहां पर निकली वो थी सिल्ट. अगर ये सिल्ट की बजाय स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्टेड सॉइल होती या क्ले होती तो वो
फाउंडेशन चल जाता, लेकिन लूज सिल्ट डिपॉजिट वाज फाउंड अप टू ग्रेट डेप्थ, और लूज सिल्ट डिपॉजिट इज द वीकेस्ट पॉसिबल सॉइल। उसमें आप अगर कोई फाउंडेशन बना देंगे, जैसे ये मेट्रो वगैरह बना है, इट इज बाउंड टू सेटल आफ्टर सम टाइम, और अगर अर्थक्वेक वगैरह कुछ आ गया तो वो शेक करके, कॉम्पैक्ट करके और नीचे चला जाएगा। सो द सडन प्रॉब्लम अराइज्ड कि अब क्या करें। देन कंसल्टिंग इंजीनियर्स वेयर अपॉइंटेड, सो दीज डिजाइन एडवाइजर्स अपॉइंटेड members from IIT Bombay, IIT Guwahati, SVNIT, CBRI, Central Building Research Institute रुड़की एंड NGRI हैदराबाद, ये कंसल्टिंग ग्रुप अपॉइंट हुआ। इसके डायरेक्टर्स या इनके जो इंजीनियर्स थे, अ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन एंड ज्वाइंट डिस्कशन वाज कैरीड आउट, और फाइनली इन्होंने डिसीजन लिया कि वी विल चेंज द फुटिंग। जो फाउंडेशन पहले प्रपोज था वो नहीं रखेंगे, एंड दे प्रपोज्ड ए न्यू टाइप ऑफ फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन में एक भी स्टील नहीं यूज हुआ है। व्हाट दे हैव यूज्ड इज रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, 56 लेयर, 56 लेयर्स में कंक्रीट रखा है, और एक आर्टिफिशियल रॉक क्रिएट किया गया है। जैसे आर्टिफिशियल मार्बल बनता है ना, आपने देखा होगा, इटालियन मार्बल, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, नाउडेज वी कैन सी टाइल आप देख रहे हो, ये भी एक आर्टिफिशियल है, बट दिस इज नॉट ए स्टोन। ये एक रॉक क्रिएट की गई। साइज क्या है? 300 फीट विड्थ, 400 फीट लेंथ और 50 फीट डेप्थ। 300 बाई 400 बाई 50, इतने साइज का एक सिंगल स्टोन तैयार करा गया फील्ड पर। कैसे? एक लेयर 1 फीट का कंक्रीट डाला, उस पर रोलर चलाया, और उस कंक्रीट में कोई स्टील नहीं है, उसमें बाइंड करने के लिए बहुत हाई ग्रेड एलिमेंट्स डाले गए, और उनको उन पे रोलर चला करके बड़े बड़े हैवी कॉम्पैक्शन रोलर चलाए। एक लेयर हो गया, उसके ऊपर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, लाइक दैट 56 लेयर्स। 56 लेयर्स को बाइंड करते 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 ये एक पूरा एक चट्टान बन गया। दिस इज कॉल्ड रॉक फाउंडेशन। दिस इज रॉक फाउंडेशन टिल 56 लेयर। तो 14 मीटर डेप्थ तक की खुदाई की गई थी 6 एकड़ में। उसके सेंटर में फाउंडेशन रखा गया, और उसमें फिर आपको मैं यहां पर दिखाता हूं। राइट, तो विल कम एंड विल डिस्कस दैट ऑल्सो। तो टोटल एरिया एज आई टोल्ड कि 70 एकड़ का है, इसमें से 70% ग्रीन एरिया। जो एक्चुअल टेम्पल बना है वो लगभग 2.77 एकड़ है, जो एक्चुअल टेम्पल है। बाकी चारों तरफ ओपन है या दूसरे कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स हैं। इसकी लेंथ है 380 फीट, विड्थ है 250 फीट, और हाइट है 161। ये टेम्पल का मेन बिल्डिंग है। एंड एज आई टोल्ड कि इंडियन नागर स्टाइल हैज बीन यूज्ड, नॉट द द्रविडियन स्टाइल। इसके अंदर, इस पूरे टेम्पल के प्रांगण के अंदर में, देयर आर 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, देयर इज 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड देयर इज डेडिकेटेड पावर सप्लाई। सो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रीन कॉन्सेप्ट। उसके बाद high rolled compacted concrete has been used. This is what I was talking, कि एक एक लेयर में डाल करके उसके ऊपर रोलर चलाया, कॉम्पैक्ट करा, केमिकल बाइंडिंग की, और इसमें कोई भी स्टील यूज नहीं किया। इट बिकेम ए रॉक। अगर आप इस रॉक की स्ट्रेंथ चेक करेंगे ना, इट इज मोर देन द ग्रेनाइटिक रॉक्स। इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया कि ग्रेनाइट से भी ज्यादा। जो भी हम कंक्रीट यूज करते हैं, विच वी यूज फॉर कॉलम, बीम और स्लैब, नॉर्मली इट इज M30 M35 ग्रेड, मतलब कि 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। लेकिन जो कंक्रीट यहां यूज हुआ है आफ्टर कॉम्पैक्शन, दैट इज वेरी हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट। उसकी स्ट्रेंथ है 60 to 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डबल है, और इतनी ज्यादा विड्थ है, इतनी ज्यादा डेप्थ है, हाइट। सो दिस इज द मेन फाउंडेशन। उसके बाद फिर जो कॉलम बने हैं, कॉलम्स 392 कॉलम्स, दे आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। ये आया है राजस्थान के बंसी पहाड़पुर, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रेनाइट लाया गया, बहुत बड़ी बड़ी ग्रेनाइट की सिल्लियां लाई गई, बिग स्टोन पीसेस विच आर यूज्ड ओवर द फाउंडेशन। फाउंडेशन के ऊपर 21 फीट की हाइट की प्लिंथ बनाई गई। प्लिंथ जानते हैं ना, कि ग्राउंड लेवल से आपका घर थोड़ा ऊंचा होगा, तो ये जो डिफरेंस है इसको आप या तो
कंक्रीट से या किसी चीज से बनाते हैं, इसको कहते हैं प्लिंथ, ताकि ग्राउंड का जो पानी का लेवल है कैपिलरी एक्शन से ऊपर ना आ सके, या कभी रेन हो, फ्लडिंग हो, तो दिस शुड नॉट बी एट दैट लेवल। सो प्लिंथ को बनाया जाता है। तो प्लिंथ इज मेड ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स, नो एनी अदर मटेरियल, ओनली ग्रेनाइट बिग रॉक्स ज्वाइंटेड। और उनको ज्वाइंट करने के लिए एक मैकेनिज्म है इंटरलॉकिंग, और दूसरी है कॉपर प्लेट्स। सो कॉपर प्लेट्स को यहां पर यूज करा गया है, उनको होल करके ड्रिलिंग करके कॉपर के मेटल यूज की गई है। जो स्टैच्यू बना है, जो मूर्ति बनी है, दैट स्टैच्यू इज मेड ऑफ द सालिग्राम रॉक। सालिग्राम रॉक, अब दो बड़े बड़े रॉक पीसेस लाए गए थे नेपाल से, एंड दिस इज फ्रॉम गंडकी रिवर इफ यू रिमेंबर। और एक रॉक का वेट था 30 टन और दूसरी रॉक का वेट था 14 टन। सो बिग रॉक पीसेस वेयर ब्रॉट, इन्हीं को काट करके मूर्तियां बनाई गई हैं। और मूर्ति राज का भी तो आप नाम जानते होंगे, अरुण योगी राज, हु इज द स्कल्प्टर। और बाकी दो लोग और भी थे, राइट, तो उन्होंने भी बनाई मूर्तियां, बट योगी राज, अरुण योगी राज की मूर्ति को फाइनल यूज करा। तो गोल्ड प्लेट हो गया, गोल्ड एंड कॉपर प्लेट एंड गोल्ड एंड अष्ट धातु। अष्ट धातु इज यूज्ड इन बेल, जो मंदिर का घंटी होती है ना, जो आप बजाते हो। कितना वेट है इसका? 21 क्विंटल, 2100 केजी का एक सिंगल बेल है। और इसका जो साउंड होगा वो 15 किलोमीटर के दायरे तक सुना जा सकता है। दिस मच इज द स्ट्रॉन्ग। एंड टीक वुड, टीक वुड इज यूज फॉर द डोर। देखिए ये है ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल से ये है एक्सकावेशन, दिस एक्सकावेशन इज 14 मीटर। आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा, जेसीबी यहां पर इतना छोटा सा दिख रहा है, तो ये हाइट ऑफ जेसीबी है, तो इतना डेप्थ है 14 मीटर। ये है फाउंडेशन का बेस, दिस वन, दिस इज द बेस ऑफ द फाउंडेशन। इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करूं। सो दिस इज द फाउंडेशन, ये है, ये फाउंडेशन का बेस है। ये है लगभग 300 फीट वाइड, 400 फीट लेंथ, और जो हाइट है ये है लगभग 14 मीटर, रफली अबाउट 50 फीट। सिंगल रॉक बनाई गई इतनी बड़ी, ये 6 एकड़ एरिया को पहले खोदा गया, इसकी सारी सिल्ट निकाल दी गई, फिर इसको भरा गया, और इसके चारों तरफ बनने के बाद फिर कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल, कॉम्पैक्टेड सॉइल को फिल करा गया। आप देखिए नीचे एक रॉक दिखाई दे रहा ना, ये देखिए ये रोलर रखा हुआ है, और इसी रोलर के ऊपर आप, रोलर के नीचे आप देख सकते हैं कि देखिए ये इतना पोर्शन ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पानी भरा हुआ नीचे, ये क्योंकि ये गड्ढा था, बारिश का कोई फोटोग्राफ होगा, और ये रॉक है, ये फाउंडेशन का एक सिंगल चट्टान बन गया। दिस इज कॉल्ड रॉक फाउंडेशन, राइट। इसमें कोई स्टील नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं है। सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है ना, नॉर्मली जब हम कंक्रीट का कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जब टेम्परेचर चेंज होता है, गर्मी आती है, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, और उस एक्सपेंशन को अलाउ करने के लिए एक्सपेंशन ज्वाइंट दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक रॉक बना दी गई। अब पहाड़ में एक सिंगल पत्थर है, पत्थर को एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो नेचुरल है, इसमें आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट बचे ही नहीं। तो एक तरह से इसको ना नेचुरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, आर्टिफिशियल, और ये ग्रेनाइट की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसकी टेस्टिंग करोगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेनाइट से भी अधिक मिलेगी। इसके बाद इसमें आप और भी चीजें देख सकते हो, एज आई हैव मेंशन्ड हियर कि 15 मीटर तक एक्सकैवेशन किया, 56 लेयर में कंक्रीटिंग करी, और 21 फीट का इसके ऊपर क्या है, प्लिंथ है। प्लिंथ के लिए ये देखिए, ये प्लिंथ के स्टोन है, ये बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, and these are of 1 meter and 2 meter length, like that, big stone pieces, and put together they are jointed together. उसके बाद इनको कॉपर की प्लेट से फिर ज्वाइंट करा गया है। तो ये स्टोन पीसेस हैं, और इनको कर्नाटका से लाया गया, कर्नाटका एंड तेलंगाना। दिस इज ग्रेनाइट। और जो कॉलम बने हैं या जो स्लैब बाकी पोर्शन है, दैट इज मेड फ्रॉम द बंसी पहाड़पुर रेड सैंडस्टोन, दैट इज कॉल्ड पिंक सैंडस्टोन। ये कॉपर प्लेट है, ये कॉपर में, कॉपर की ही प्लेटें हैं। दीज प्लेट्स हैव बीन यूज्ड, जिनमें नाम लिखा हुआ है जय श्री राम। दिस इज द कलर्ड पिंक सैंडस्टोन। इतनी थिक ये वुड यूज हुई है। दिस इज द टीक वुड, बहुत हाई ग्रेड टीक है ये, हाई ग्रेड सीजनड वुड। इसका भी सैकड़ों साल कुछ नहीं होने वाला, राइट। ये है वो सालिग्राम रॉक। दीज आर द रॉक्स विच वे आर ब्रॉट फ्रॉम Nepal. So these are the Saligram rocks, और
ये रॉक है, इसका लगभग 30 टन के आसपास इसका वेट है, और दिस इज रॉक ऑफ 14 टन वेट, एंड दिस इज 60 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक. सालिग्राम रॉक इज वेरी strong, durable, free from weathering, and more important, it is हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये रिलीजियस भी है. एक सालिग्राम मूर्ति भी होती है, तो ये इसी रॉक की बनी होती है. तो दीज आर ब्रॉड फ्रॉम नेपाल. देन ये है वो हम बात कर रहे थे, जो 21 क्विंटल का, जो घंटा बोलो या घंटी बोलो, दिस इज 21 क्विंटल are made of ashtadhatu, and these ashtadhatu has gold, silver, copper, zinc, lead, tin, iron, and mercury, right? And the sound can be heard in 15 kilometer radius. Then we talk about the some other parts of temples. Ram temple is not the only one temple. The complex of Ram temple consists of the many other temples. इसमें से चारों कॉर्नर पे भी टेम्पल है, एक उत्तर में और एक दक्षिण में भी टेम्पल है, और फिर बहुत सारे जितने हमारे महर्षि हुए हैं जो इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जिन्होंने रामायण लिखी है, वाल्मीकि जी, ऋषि अगस्त्य, एंड उनके सबके भी छोटे छोटे टेम्पल बनाए जा रहे हैं. दोज आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, वी विल टॉक अबाउट दैट. सो द मेन टेम्पल इनफैक्ट ऑफ श्री राम टेम्पल. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें एक राम दरबार भी है, and there is one prayer room and like that. तो देखिए 5 मंडप्स they are talking. नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एंड कीर्तन. तो ये 5 मंडप भी हैं जिसको हॉल कह सकते हैं आप. तो वो हैं इनके इस मंदिर के अंदर ही. देन एट 4 कॉर्नर्स ऑन द पेरीफेरी, यहाँ पे 4 टेम्पल है. परकोटा जानते हैं? परकोटा का मतलब है दीवाल, जो मंदिर की 4 दीवारी है बाहर, उसको परकोटा कहते हैं. परकोटा के अंदर लगभग 8 एकड़ एरिया है, 8 एकड़. उस 8 एकड़ में से लगभग 2.77 एकड़ में राम टेम्पल है, और रिमेनिंग कुछ ग्रीन है, कुछ वॉकवे है, कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं परकोटा के किनारे किनारे. सो आई विल शो यू दोज टेम्पल्स. सूर्य देव का टेम्पल है, देन माँ भगवती का टेम्पल है, गणेशा टेम्पल है, और लॉर्ड शिवा टेम्पल है. चारों कॉर्नर पर ये टेम्पल्स हैं. फिर देयर इज वन टेम्पल ऑन द नॉर्थ एंड वन टेम्पल ऑन द साउथ वॉल, और वो टेम्पल है नॉर्थ में है गॉडेस अन्नपूर्णा देवी का, और साउथ में है हनुमान जी का, लॉर्ड हनुमान टेम्पल, राइट. विद इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स देयर आर सम मोर स्मॉल लाइक महर्षि वाल्मीकि, इनका छोटा सा टेम्पल है, महर्षि वशिष्ठ का टेम्पल है, महर्षि विश्वामित्र का टेम्पल है, महर्षि अगस्त्य का टेम्पल है. देन वी हैव दी निषाद राज का टेम्पल है, माता सबरी का टेम्पल है, एंड देवी अहिल्या का टेम्पल है. सो दीज आर दी मोर टेम्पल्स जिनका रामायण में कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है, राइट. अहिल्या का, या फिर माता सबरी का, वाल्मीकि जी को हम जानते ही हैं, विश्वामित्र का, ऋषि अगस्त्य. एक सीता कूप है जो टेम्पल के प्रमाइस के अंदर ही आता, 70 एकड़ के प्रमाइस में इसका रिजोविनेशन किया गया है. और एक यहाँ भगवान शिव का भी, लॉर्ड शिव का भी एक टेम्पल था, उसको जीर्णोद्धार मतलब उसको रिनोवेट किया जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. इसमें मैं आपको बताता हूं, जो फर्स्ट इमेज थी उसमें आपको ये सारे टेम्पल्स की पोजीशन दिखाता हूं मैं इसमें. तो दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ. दिस इज द एंट्रेंस, राइट. ईस्ट वेस्ट, ये लेंथ है लगभग 380 फीट की लेंथ, और ये विड्थ है, ऐसी चौड़ाई लगभग 250 फीट की, और हाइट, ये हाईएस्ट पॉइंट है 161 फीट. नाउ दिस इज वन टेम्पल, दिस इज द अनदर टेम्पल, दिस इज थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर. देख रहे हैं ना टेम्पल, ये वो 4 कोने वाले टेम्पल हैं. सूर्यदेव, मां अन्नपूर्णा, गणेश एंड शिवा. फिर 2 टेम्पल मैंने बताए थे, हाँ, अन्नपूर्णा उत्तर में और दक्षिण में ये सॉरी, दीज आर दी 2 टेम्पल्स. और फिर ये जितने आप देख रहे हैं, ये जो ऋषि लोग थे ना, उन सब के भी लोकेशंस ऐसे ऐसे बीच बीच में है. सो देयर आर दी
दिस इज, और ये पूरा परकोटा कहलाता है, ये जो बाउंड्री है ना, दिस इज परकोटा, ये ग्रीन पोर्शन है, एंड दिस इज द लाइक टेम्पल. सो दिस इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो जो ये फाउंडेशन की स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ इज बिकॉज दे हैव नॉट यूज्ड स्टील, brick, any material which has less life has not been used. Secondly, foundation is very strong, it is earthquake resistant. वैसे तो अयोध्या is located on zone 4, entire in Delhi is also in zone 4, but the design of foundation is according to zone 5 plus, and even Central Vista project has been designed as per zone 5, although we are in zone 4. So this is very strong.